मिन्नतें भी जारी है, टैक्सों की भरमार है, नाअहलों की बारी है। सोना डालर दोनों आसमां को छू रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना। अच्छे वाला रेवड़िया गुड़ वाला। लोग जलसगाह में जा रहे हैं कुछ कारोबार करने के लिए। तैयार है सारे पाकिस्तान से अवाम की जानी है वली को देख कर दुश्मन परेशान है, हमारे वली को देख कर दुश्मन परेशान है, खुदा का शुक्र है वाहिद हमारा बाकी सारा और तमाम टीवी चैनल्स के कैमरामैन तो यहाँ मौजूद हैं। अब देखना ये है कि इन कैमरों की मौजूदगी का कौन से चैनल कितना फ़ायदा कितनी देर तक उठाते हैं और वो सब कुछ राह रास्त दिखाते हैं, जिस तरह कि इससे पहले इस्लामाबाद के चैनल को दिखाया जाता था। हमने अपने साथ खुराक पानी सब कुछ लाया है और इंशाअल्लाह जब तक हमारे कायद साहब कहेंगे उठ जाओ फिर उठेंगे और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे और कायद के इशारे पर अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए निकले हैं और इस्लाम के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की और इस्लाम की बका चाहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इज़्ज़त चाहते हैं। आपका कितना खर्चा हुआ है महंगाई के इस दौर में अपने खुराक और पानी और सफ़र पर? खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खर्च हम कर रहे हैं ये हम समझते हैं कि ये हमारा आखिरत में इसका ज़ख़ीरा अल्लाह को बहुत ज़्यादा इसका देगा। तो कितना खर्चा किया आपने? तकरीबन हमने 20-25 हज़ार रुपये अपने साथ लाए हैं और भी इंशाअल्लाह मंगवाएंगे। अगर तो कहाँ से आए हैं आप? हम मैं मलकनी से आए हूँ। मेरा नाम कारी मोहम्मद गुलाम सरवर है और मैं शेरगल दारुल से फारिग हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का से ऊपर मेरा उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ से वाकिफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं या फजल रहमान साहब को? हम मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को नहीं? नहीं नहीं नहीं,
نواز شریف کو پسند کرتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان سے وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور ان کو صدر بھی بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کے تمام اختیارات A to Z. تو یہ نون لیگ والے آپ کو جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ مولانا کو وزیر اعظم تھوڑی بنائیں گے؟ انشاءاللہ اگر ان کو کوئی ہماری ضرورت پڑی تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ان کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے؟ نہیں مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ. عمران خان کو بھگانے کے لیے آیا کیا بھگانے کے لیے؟ انشاءاللہ. اچھا تو وہ آپ کے کہنے پہ بھاگ جائے گا؟ ہم بھاگ چکا ہے. ہر انسان اپنا وسعت کے مطابق مکلف ہے. ہم اپنا زور لگائیں گے. اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ جائے گا ورنہ. تو آپ ادھر زور کس چیز میں لگائیں گے؟ نعرہ بازی میں لگائیں گے؟ تقریروں میں لگائیں گے؟ اس سے تو نہیں جیسے جاتے. ہمارے قائد محترم ہمیں وہ دیں گے تو اس طرح کریں گے. اگر اچھا. زور لگانے کی ضرورت پڑے تو زور لگائیں گے. اگر اور کوئی حکمت عملی وہ بتاتے ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ. تو آپ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنانے چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کی بات تو وہ تو الگ ہے. جب الیکشن ہوگا تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کون وزیر اعظم بنتا ہے یا مطلب یہ جب الیکشن ہوگا تو آپ پتہ چلے گا آپ کس کو ووٹ دیں گے. پہلے نہیں بتا رہے آپ؟ نہیں. ووٹ تو انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم وہ بنے یا نہ بنے ہمارا ووٹ تو جمعیت کا ہے اور مولانا فضل الرحمان ہی کا ہے. اور کسی کو تو پھر وہ ہار کیسے گئے؟ یہ تو بس بات یہی ہے. اسی وجہ سے تو ہم نکلے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم نکلے کہ وہ سلیکٹڈ جو ہے نا وزیر اعظم بنایا گیا. کس نے ہرایا ہے مولانا صاحب کو؟ مولانا صاحب کو وہ گندا پور نے. گندا پور خلائی مخلوق. آپ تو مذہبی علماء ہیں اور آپ خلائی مخلوق پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ دنیا کا اسلام میں خلائی مخلوق ہے؟ میری بات سنیں. دنیا مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام مسبب الاسباب میں رکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور روٹی کا لقمہ آپ کے. لیکن آپ نے خلائی مخلوق کا نام لیا تو اسلام میں خلائی مخلوق کا تصور موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. اچھا کون سے مثال دیں؟ جو موجودہ خلائی مخلوق ہے نا جو پیچھے چھپ کے جو ساری اس سلیکٹڈ حکومت کو سلیکٹڈ عمران خان کو پرووائڈ کر رہی ہے اس کو گائیڈ کر رہی ہے. لیکن یہ خلائی مخلوق تو آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتی رہی ہے گائیڈ کرتی رہی ہے. کون سی خلائی مخلوق؟ جب MMA کی حکومت کے PK میں بنی تھی جنرل مشرف نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ ہم اس وقت الحمدللہ اپوزیشن میں تھے اور ڈٹ کر اپوزیشن لیڈر کا ایسا کردار. تو وہ MMA کی حکومت جو بنی تھی جی جناب آپ مولانا صاحب کو خلیفہ بنانے چاہتے ہیں یا وزیر اعظم؟ انشاءاللہ خلیفہ امیر المومنین بنیں گے. اور وہ جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اس کے برخلاف چل رہا ہے. ایک قدم بتائیں کہ جو اس نے الیکشنز کے بغیر خلیفہ بنا دیں گے؟ نہیں انشاءاللہ الیکشن میں خلیفہ امیر المومنین. الیکشن میں تو وزیر اعظم بنتے ہیں لوگ، خلیفہ تو نہیں بنتے. وہ کردار نام وزیر اعظم کا ہوگا اور جو ان کا کردار ہوگا وہ خلیفہ کا ہوگا انشاءاللہ. بہرحال آپ ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ جب جمہوریت ہوتی تھی تو مذہب کا نام لیتے تھے، اب آمریت ہے تو آپ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں. ہم نے آمریت کے خلاف بھی جمہوریت کا ساتھ دیا اور اب بھی جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ خورشید عالم نام ہے. باغ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے اور مسلم لیگ نون ضلع باغ کا جنرل سیکرٹری ہوں. اور میں یہاں آج صبح یہاں پہنچا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ. یہاں جو ہے نا اس قافلہ لے کر یہاں پہنچا تھا. اور ہمارا جو مقصد ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ نے وہاں اس پروگرام میں جانا ہے، تو ان کے اعلان کے مطابق ہم یہاں آئے ہیں. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے لوگوں کے جذبات دیکھ لیے، اسی طرح ہر آدمی کا، ہر پاکستانی کے جذبات اسی طرح ہیں. اور ہر پاکستانی بہت مشکل میں، مہنگائی اور ظلم کی وجہ سے لوگ سارے جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہیں. جس نے قوم کو قائل کیا
जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन के ये बताना चाहता हूँ, अभी आपने एक सवाल किया यहाँ पे कि मज़हब के नाम पर, तो क्या ये पाकिस्तान जो 1947 में इसकी बुनियाद बनी उसका मेन मोटो क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? क्या वो पाकिस्तान के जो मिरास थी वो दीन पर नहीं बनी थी? क्या इमरान खान ने जो ये मदीने की रियासत का काम किया था, मदीने में क्या हो रहा है? क्या ये जो जहाँ पे 129 दिन आप बैठ के अपने बाजे बाजियाँ लेके बैठे रहे हैं, क्या 129 दिन वहाँ पे ये होता रहा है? क्यों आप इन लोगों को इस तरह की बातें करके दिखा रहे हैं? इस हुकूमत के लिए जो बात एक शेर के जरिए कहना चाहता हूँ, आज तुम बसर इक़्तिदार हो, कल नहीं होगे। आज तुम बसर इक़्तिदार हो, कल नहीं होगे। आज तुम किराएदार हो, मालिक मकान नहीं हो। ये पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। गो इमरान, गो इमरान, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। चले गए। अच्छा ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम खुद भी बहुत सी हुकूमतों में पार्टनर रही है, ताजी रही है, तो उस वक्त इस्लाम क्यों नहीं नाफिज किया? मौलाना फजलुर रहमान जब से हुकूमत के साथ है वो आज तक यही बात इस्लाम के लिए बात कर रहे हैं। आज आप मुझे बता दें, ये जो कादियानियों के खिलाफ इन्होंने जो किया है और आपकी उन्होंने इस्तीफा दिया है इस्लाम नाफिज ना करने पर, तो आपने उनको हुकूमत कौन सी दी है जो बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया है? वो जब कितनी सीटें दी है? कितना सीटें दी हैं आपने? कितनी कितनी सीटें दी हैं आपने उनको? आपने कितनी सीटें दी उनको? आप उनसे इस्तीफे के मुतालबा कर रहे हैं? सीटें किसने देनी थी? नहीं, जिन्होंने देनी थी, जिनकी आप बात कर रहे अवाम ने हैं, देनी अगर थी ना। हाँ आवाम की बात कर रहे हैं, और आज आप जैसे मानते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है सही तो ये हुआ, अवाम का कसूर है या किसी और का? ये सब जो कसूर है आप सबको पता है, जिनका भी कसूर है। आप क्या कहलवाना चाहते हैं? वो कहते हैं मैं इसलिए खामोश हूं कि तमाशा न बने। आप समझते हैं कि हमें सिवा कुछ नहीं। नहीं, मतलब आप इस वक्त फौरी तौर पे इस्लाम नाफिज नहीं करना चाह रहे हैं, आप फिलहाल खामोश हैं। अगर इस्लाम नाफिज होगा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। और ये जो मदीने की रियासत के अंदर जरिए होगा या मौलाना? देखिए, हमें किसी की जात पे नहीं है, हम इंशाल्लाह अपने कायद के हुक्म पे निकले, ठीक है, और अपने कायद के इंशाल्लाह जो हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। के करीब साथी हम जाए, अपने खर्चे पे हम आए, किसी से हमने खर्चा नहीं लिया है। कितना खर्चा हुआ है? खर्चा जो है वो गाड़ियों का आपको पता है, किराए का हिसाब ही है, खाना पीने का हिसाब है। कितना हो गया? बस कम ही हुआ है, इतना नहीं हुआ है। और हम मिल करके खाते पीते हैं, हम दीनी लोग हैं, तबलीगी जमात वाले लोग हैं। सियासतदानों पे भी यही इल्जाम है? नहीं, सियासतदान जो हैं वो भी मिल करके खाते हैं, लेकिन हमारे फजल रहमान साहब नहीं खाते हैं। उन्होंने जो है उन्हें 2005 में या 8 में हमें जो हुकूमत मिली थी, हमने उसमें कोशिश की थी हस्बा बिल वहाँ नाफिज करने के लिए। हमने हस्बा बिल लाए थे, जो उस वक्त एक गवर्नर थे उसने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, वरना हम इंशाल्लाह इसमें एहतसाब भी करने वाले थे इस मुल्क का इंशाल्लाह अगली दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोगों को ये इतराज़ है कि मौलाना साहब हर जमात के साथ मिल जाते हैं, मिलने के बावजूद अब जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात यहूद व नसारा का थ्रेट आता है तो उसका साथ नहीं देते, बल्कि उनकी मुखालफत करते हैं हुकूमत वालों की। काफ़ी थ्रेट आए पहले भी कि हर स्कूल में सेक्स का पीरियड होना चाहिए, मौलाना साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं होने होगा, ये फितरी अमल है, जानवर भी कर लेते हैं। एक थ्रेट आया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी नाम खत्म किया जाए। मौलाना साहब कहने लगे जानवर कर लेते हैं, क्या मतलब? नहीं, सेक्स का पीरियड उन्होंने कहा भी लगाया जाए हर स्कूल में। एक थ्रेड आया था इसके बारे में तालीम नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ये फितरी अमल है, जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और जानवर में तो फर्क नहीं, फर्क है। तो ये सेक्स में तो बेहयाई फैलेगी। एक दफा थ्रेड आया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी नाम खत्म किया जाए। मौलाना साहब कहने लगा कि मैं बिल्कुल खत्म नहीं होने दूंगा। इस्लाम के नाम पे रियासत वजूद आई है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रहेगा इंशाल्लाह। समाज फरमाए, जिन हजरात ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है उनके लिए हमारे दिल में अब कोई नहीं तेरे लिए मोहब्बत
मिन्नतें भी जानी है, टैक्सों की भरमार है, ना अहलों की बारी है। सोना डॉलर दोनों आसमां को छू रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दुनिया से भागो, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना। अच्छे वाला रेवड़िया गुड़ गिरने वाले हम नहीं बिकने वाले, उस दिल तेरी ताकत से हम नहीं डरने वाले, हम नहीं गिरने वाले, हम नहीं बिकने वाले, उस दिल तेरी ताकत से हम नहीं डरने वाले। गालिब अजीजुल्लाह की बुलंद ये सदा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दुनिया से मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, गरम गरम करने की तैयारी शुरू है। इंशाल्लाह इमरान इस्तीफा लेगा। तब्दीली के नाम से चलो आवाम से, निजाम से सबको नफरत हो गई, तब्दीली के नाम से। नाअहलों के हाथों गरीब रो रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इस्लामाबाद को नामदौल कर रहा है, मौलाना गरीबों का ये पैगाम है, मजदूर लोग हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रही और हम तो धक्के खा रहे हैं। हमारी हालत देखो, बच्चे भूखे हैं, कर्जा उठा उठा के हम थक गए हैं, तो कर्जे वाले भी तंग कर रहे हैं। हम किधर जाएं, हम गरीब लोग, हम गरीबों का बहुत बुरा हाल है। इमरान खान से, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमारा सोचो कोई, यही नहीं है कि टैक्स पे टैक्स, तो गरीबों का जो मजदूर लोग हैं वो किधर जाए, जो दिहाड़ी लगाते हैं वो भी रो रहे हैं, जो तनहा ले हाँ। ये जो अब ये धरना दिया किस लिए दिया, ये ना होता ऐसा, मतलब कि लॉन्ग मार्च नहीं होती ये। अगर आप सही चलते हैं इमरान खान साहब, तो क्या था, आपने इतने वादे किए हम लोगों से, हम आपके धरने में भी थे, हम आपके धरने में भी धक्के खाए, सोटियाँ खाई। अब आप बताओ कि आपने क्या सोचा हम लोगों का, आप लोगों के भी हम धरने में आए, डंडे खाए, सोटे खाए, मतलब धक्के खाए। ये रास्ता तो हमको इमरान ने बताया, ये रास्ता आप ही ने बताया है ना इमरान साहब। उसने तो बोला ये रास्ता तो हमको इमरान ने बताया अच्छा कि नया पाकिस्तान खाने का कि गंडेरी का नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान ने तो उसने पहले से बर्बाद किया, और अभी हम लोग इधर धरना करेगा वही पाकिस्तान। उसने बोला है कि धरना करो, नवाज शरीफ को गिराओ। अभी हम इधर धरना करेगा तो इमरान को गिराएगा। अब इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए ख़त्म होगा। तो तब्दीली भी आ गया, तब्दीली आ नहीं गया, अभी मौलाना तब्दीली लाएगी। उसने भी झूठा वादे किया कि तब्दीली आ रहे, लाएगी या लाएगा, लाएगा। मौलाना आ रहा है, मौलाना